Hello students, today I will take up some numerical problems on velocity time graph. So first question is, a graph is given and with the help of the given velocity time graph we will have to find displacement in first 3 seconds. Displacement in first 3 seconds and acceleration of this given graph. So two things, displacement in first 3 seconds and acceleration of the graph. So to solve this question, we know that the area under VT graph, area under velocity time graph, gives the measurement of displacement. So displacement will be equal to the area under VT graph. Area under VT graph. So we will have to find out displacement in first 3 seconds. First 3 seconds means we will have to find out the area from here to here. This enclosed area we will have to find out. So to find out the area, so first displacement in first 3 seconds, that will be area of, so let this point A, let this be A, B, C, so let this be D. So area between, area of the graph OAB, this will be area of the triangle OAB. This will be area of triangle OAB. So if you find the area of this triangle, then definitely we will get the solution. So that area will be equal to how much? Half area of this triangle, it will be half OB and OA, half into base into height, half into base OB into height OA. So this will be equal to half OB. OB means 3 seconds into height. Height means OA. How much? It is 30 meter per second into 30 will be, this will be equal to 45 meter. So this is the displacement in first 3 seconds. It is positive, not negative. Okay. So second part of the question, acceleration of the above graph. We know that the acceleration of the VT graph is slope of the graph. Slope of this graph. So acceleration will be equal to slope of the graph. How to find out the slope? Slope कैसे निकालें? So slope निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y2 minus y1 by x2 minus x1, ये slope होता है. y2 minus y1 by x2 by minus x1. So because this is a straight line, so it is easy to find out the slope. So you will have to find out the slope of the line AB. So slope
of the line AB, that will be y2 standard formula, y2 minus y1 by x2 minus x1. Slope is, say, if it is theta, so tan, what will be tan theta? Slope means tan theta. So tan theta will be equal to perpendicular by base. Perpendicular means 30 minus 0. 30. Base means 3 minus 0. So this is the procedure. So y2 is how much? y2 means 30. y1 30, y2 0. So 0 minus 30 by 3. So how much it will be? See, direction is very important. y2 means it is coming from here to here. So y2 will be 0, and t2 minus t1, x2 minus x1. Okay, so it will be minus 10 meter per second square. It is minus 10. So here the conclusion is acceleration is negative. Okay, so just go y2 minus y1 is equal to x2 minus x1. That's all. So this was about the first question. इसको हमने कैसे किया? हमने डिस्प्लेसमेंट हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ द बीटी ग्राफ, ये तो निकल आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एक्सेलेरेशन निकालिए, दिस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ. तो ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल आया. दिस वाज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना होता है. अब वीटी ग्राफ में जो एक्सेलरेशन निकालते हैं तो को कैसे निकलता है? दिस इज बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ. इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? दिस बाय दिस. y2 ये y1 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो इससे आ गया हमारा नेगेटिव आ गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकंड इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स द ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. यहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो पहले क्वेश्चन पढ़े. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन. इसमें फार्मूले दिए गए हैं, उसमें देखना है कि कौन सा सही है. सो हम पहले देखते हैं फर्स्ट वाला. फर्स्ट फार्मूला है x2 will be equal to xt2 is equal to x t1 plus v t1 minus t2 plus half a t2 minus t1 का स्क्वायर. अब इसमें पहला वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए यहां पर a दिया गया है. दिस a मीन्स इट इज शोइंग दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे है ही नहीं. इस ग्राफ में t1 से t2 तक देयर इज नो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. क्योंकि वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है देन इट इज स्ट्रेट लाइन. हियर दिस लाइन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट इज ये फर्स्ट वन इज not correct. So first is wrong.
So now we will go to second one. So this is not correct, because acceleration, as per equation, acceleration is uniform, but as per graph, acceleration is not uniform. Second question. Second is v t2 will be equal to v t1 plus a t2 minus t1. t2 minus t1 basically. So here in this question also the equation shows acceleration as uniform, but in reality in the graph this acceleration यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज वेरी कर रहा है. यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म होता तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती, बट दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व. सो ये भी गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट. मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं, या यू कैन राइट एक्सेलरेशन is not uniform. Same question, same logic here. Acceleration is not uniform. क्योंकि यूनिफॉर्म अगर होता तो स्ट्रेट लाइन होती. ठीक है, इक्वेशन में यूनिफॉर्म दिखाया जा रहा है. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, VAB average velocity will be x t2 minus x t1 by t2 minus t1. ये सही है, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है. हम इसमें निकाल सकते हैं x t1 और x t2, दोनों को दोनों से हम निकाल सकते हैं बाई द ग्राफ. इसका v2 निकालें, इसका v2 निकाल लें, तो यहाँ पे ये t1 है, ये t2 है, तो दोनों का जो है, तो ये फार्मूला हमारा सही है. x t2 माइनस x t1 इक्वल टू t2 बाई t1. ये फार्मूला एकदम बिल्कुल उसको हम निकाल सकते हैं. देन फोर्थ में भी same thing. Fourth, A average will be equal to VT2 minus VT1 by T2 minus T1. अब इसमें भी देखिए, A एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. VT2 और VT1 निकाल करके हम, ये हमारा फार्मूला है. सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट बाय सेम लॉजिक. नाउ फिफ्थ इज XT2. XT2 equal to XT1 plus V average T2 minus T1 plus half A average T2 minus T1 स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें दिया हुआ X एवरेज V एवरेज और A एवरेज दिया गया है इस इक्वेशन में, जबकि ग्राफ में ये चीज है ही नहीं. जो भी पैरामीटर इक्वेशन में होना चाहिए वही होना चाहिए जो कि ग्राफ में हो. ये जो दोनों पैरामीटर हैं, V एवरेज और X, ये A एवरेज एंड V एवरेज, ये ग्राफ में नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ सिक्स्थ. हियर क्वेश्चन इज XT2 minus XT1, it is equal to area under VT कर्व. ये सही है. XT2 माइनस XT1 हमको अगर निकालना है तो इसका जो एरिया है, इस एरिया से हम
डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं xt2 माइनस xt1। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो ये निकल जाएगा। देयरफॉर दिस इज करेक्ट। सो इट इज जस्ट एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। इन क्वेश्चंस में पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या तरीका है। पहले हम ग्राफ को ढंग से देखें। हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जहां हमने इक्वेशन में हमने ए यूनिफॉर्म दिखा, इसका मतलब कि ये गलत है। तो इसी लॉजिक से ये गलत है क्योंकि इसमें ए यूनिफॉर्म दिया गया है और ग्राफ में यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरी कर रहा है। उसी तरीके से ये जो दिया हुआ इक्वेशन एवरेज निकाल सकते हैं क्योंकि सारे पैरामीटर्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिफ्थ में यहाँ पे जो पैरामीटर दिया गया है वी एवरेज और ए एवरेज, ये ग्राफ में नहीं दिया गया है, इसलिए ये गलत है। और लास्ट वाला सही है क्योंकि एरिया उसके नीचे एकदम सही है। तो आज का हमारा जो वीडियो केवल यहीं तक, आगे हम इन पर हम किस और न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो आज का बस यहीं तक, जिसमें कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो न्यूमेरिकल लिए, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। थैंक यू।